ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਿਆ? ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ, ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੇ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵਕੀਲੇ ਸਫਾਈ ਸੀ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਐ ਹੁਣੀ ਸਰ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਬਲ ਚ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਏ, ਤੂੰ ਬਸ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇ। ਪਾਏਗਾ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। ਟਕੋਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਲੇ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਖਮ ਮੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਚਾਹ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਵਾਵਾ ਜਰਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਲਾ ਦੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਮਾਮ ਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਧੱਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੀ ਬਸ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਤੁਮ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਰੋਲੇ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੱਭ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੂਲ ਅੱਜ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਹੀ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਾ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੱਕ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਪਾ ਛੜੀ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ कादियानी थे? बस वो बात आप लोग डालते रहते हैं ना, जब लड़ने का टाइम होगा लड़ लेंगे, लेकिन लानत नहीं डालनी है किसी पे भी। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਭਾਈ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ। मुसलमान जो होता है लानत नहीं डालता, मुसलमान जो होता है वो हक के लिए लड़ता है ना। तो जब नहीं, वक्त वो आएगा ना आप ही लड़ने का, फरमा रहे हैं कि मैं मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गया हूँ,
جو چاہے گا لڑنے کا لڑیں گے یار ان کے خلاف بھی، لیکن جو ہوتا ہے وہ کیا لعنت کیا ڈالنا کیا لڑیں گے آپ؟ کس محاذ پہ لڑیں گے؟ کس سوچیے موضوع نا پہ کہ لڑیں گے؟ غزوہ بدر کا جو ہوتا ہے وہ ٹائم آئے اور کوئی یہ بولتا ہے کہ یا رسول اللہ میں لڑوں گا تو نہیں، میں تو لعنت ڈالوں گا، تو لعنت ڈالنے کا کیا فائدہ ہے یار، لعنت تو ویسے ہی ہے نہیں، نا۔ کس محاذ پہ لڑیں گے؟ کس موضوع جب پر لڑنے کا لڑیں گے ٹائم آئے قادیانی؟ گا تو، جب لڑنے کا جی ٹائم آئے گا، جب لڑنے کا ٹائم لڑنے آئے کا گا ٹائم؟ جی ابھی لڑائی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے پھر۔ ارے ابھی کہاں سے، یہ تو مسکین ٹائپ لوگ ہیں، لڑائی تو جو ہوتا ہے وہ کسی مد مقابل سے ہو نا، یہ تو کہاں سے۔ چلو آپ کسی ایک جگہ پہ ٹکیں گے تو پھر ہی ہے نا۔ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، میرے ساتھ کہاں پہ ہیں؟ ایسے ہی جھوٹ تو نہ بولا کریں۔ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو ہوتا ہے وہ کیا، وہ کمزور گرا ہوا ہے تو اس کو کتنے مکے اور مارے، یہ بھی تو ہے نا۔ کون کمزور گرا ہوا ہے؟ یہی مرزائی قادیانی۔ نہیں ہم کون سا آپ کی کوئی کھول کروانا لگے ہیں یا کشتی کروانے لگے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ان پہ لانا ڈال دیں، دو رنگی چھوڑ دیں، یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ ہاں، جتنے بھی جو ہوتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، وہ جو نہیں ان کی اس کو مانتے آخری نبوت کو، ان سب پہ جو تھا وہ ہے، لیکن کسی کو جو تھا وہ نام ڈال کے جو تھا وہ کہنا کیا فائدہ اس کا، وہ پھر اوفینڈ فیل کریں گے نا۔ میں آپ کو میں ویسے اگزامپل دے رہا ہوں کہ اب ہمارے آس پاس ہندو بھی ہوں، وہ کوئی بولے ہندوؤں پہ لعنت بھیج دو، تو کیا لڑائی ہوگی اس سے اور کیا ہوگا؟ نہیں لڑائی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو آپ کر رہے ہیں بار بار۔ نہیں لڑائی مفتی کون کہہ رہا ہے آپ کو کہ لڑائی کریں یا لڑائی جھگڑا کریں؟ مفتی صاحب آپ مجھ سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ علم رکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ کرنی چاہیے نا، لعنت بھیجنے سے تو وہ مشتعل ہو جائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ لعنت بھیجیں گے تو وہ مشتعل ہو جائے گا نا، وہ بات بھی نہیں سنے گا آپ کی، تو تو لعنت بھائی اللہ پاک خود لعنت ڈال رہا ہے کافروں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، جی جی عیسائیوں کے اوپر قرآن پاک کے اندر۔ جی بالکل۔ تو یہ تو اللہ کی سنت ہے، آپ کیوں نہیں ڈالتے؟ میں اللہ تو نہیں ہونا یار مفتی صاحب، میں تو جو ہوتا ہے خود گناہ گار بندہ ہوں، میں ہی مچھلیاں اچھا یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے کہ ہمارے لیے ہے؟ ڈالنی ہے نا، اب میں تو نہیں نا نہیں کتاب لکھ کے میں لانتے اللہ تو ڈالنے کا یہ جو کلام الہی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہی ہے نا۔ آپ کے لیے ہے نا، تو اللہ کے لیے تو نہیں ہے، اللہ کا تو کلام ہے، جی جی وہ تو بالکل۔ مخلوق کے لیے ہے نا، تو مخلوق کے لیے اس نے کلام دیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، بالکل جی جی لعنت اللہ اور علی الکافرین، سورہ البقرہ آیت 99، جی جی ٹھیک اور ہے؟ وہ جی اور سورہ البقرہ آیت 88 کے اندر اللہ پاک نے یہودیوں کے اوپر لعنت کی ہے، بالکل کی ہے، اور اور یہ اس کے کیا ہے علاوہ کہ اور بہت سی آیات ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جہاں پہ عیسائیوں کے اوپر لعنت، جھوٹوں کے اوپر لعنت، جی جی ایسے ہی ہے، اور جو لعنت ہوتا ہے اللہ وہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت 61 ہے۔ زبردست ایسے ہی ہے مفتی صاحب، اور پھر مطلب آگے پھر اللہ پاک نے سورہ البقرہ آیت 61 کے اندر اپنی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت بھیجی، لعنت جی جی اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب بالکل تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کیا الناس اجمعین کے اندر نہیں ہے شامل؟ نہیں مفتی صاحب دیکھیں، وہ یہ بھی ہے نا، دردناک عذاب کی خبر بھی دی گئی ہے، جہنم کی نوید بھی وہ دی گئی بعد ہے۔ میں، لعنت پہلے، میں لعنت چولہا پہلے جلا کر میں عذاب بعد کہوں میں۔ کہ میں ڈالوں گا ان کو چولہے کے اندر، تو میں نے تو آپ نہیں کو اللہ جلا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ملائکہ کی بھی لعنت، میری بھی لعنت، تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ کافی ہے نا وہ، کیا کافی ہے وہ؟ یہی جو تھا جو آپ بتا رہی ہیں، اب مزید مطلب میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی تیار کی ہوئی ہے، اب میں دنیا میں بولوں کہ میں ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالوں گا، میں آگ میں ڈالوں گا، تو نہیں آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ جنت دوزخ کے ٹکٹ بانٹتے پھریں؟ آپ کو تو یہ کہہ ہی نہیں رہے ہم۔ اسی طریقے سے مفتی صاحب، اسی طریقے سے لعنت کرنا یا گالم گلوچ کرنا بھی تو ہمارا کام نہیں ہے نا۔ نہیں گالی گلوچ کرنے کا بھی نہیں آپ کو میں کہہ رہا، کیا یہ لعنت کرنا گالی ہوتی ہے؟ بس یہ کہہ لیں کہ یہ ہدایت پر نہیں ہے، غلطی پر ہے، نہیں لعنت کرنا کیا گالی ہوتی ہے؟ لعنت کرنے سے لڑائی ہوگی نا مفتی صاحب، لعنت تو بری اچھا بات لعنت کرنا، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ لڑائیاں کروانا چاہتا ہے؟
यार वो तो उनका अल्लाह ताला का वर्डिक्ट है ना। अब मैं नाउज़ुबिल्लाह नहीं, बोल रहा हूँ। आप क्या समझाना हमें चाह रहे हैं कि लानत कादियानियों के ऊपर ना, एक तरफ आप कह रहे हैं जी मैं कादियानियों को अब मानना छोड़ दिया है, कल तक तो जी आप जी कादियानी एक बहुत बड़े नहीं कादियानी नहीं, बने हुए मैं थे। ये कह रहा हूँ कि उनके मुफ्ती साहब उनके गलत अकायद के ऊपर हम लानत भेजते हैं, ठीक है? उनके जो गलत गलत अकायद है ना, अकायद के ऊपर लानत, जी जी, उनके अबू जो जाल गलत के ऊपर अकायद है। लानत भेजते हैं कि नहीं आप? अबू जहल तो मुझसे कितने, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। मैं नहीं मरे हुए ठीक है, बंदे तो वो तो फिर अब मिर्जा कादियानी भी अभी आपके दौर में मौजूद नहीं है। जी जी, तो इसीलिए कहते हैं ना हाँ। कि हम उसके अकायद के ऊपर जो लानत भेजते हैं, लेकिन जो एक नहीं शख्स जो मिर्जा था वो, अच्छा, अबू जाल के अकायद के ऊपर आप लानत भेजते हैं, यानी उसके ऊपर नहीं भेजते। मैं तो उसकी ताल्लुक लेकिन ही नहीं है अल्लाह वो पाक ने तो अकीदों के ऊपर तो लानत नहीं भेजी, डायरेक्ट उनके ऊपर भेजी है। जी जी, सही सही। हाँ, लानतुल्लाहि लल काफिरीन, सूरह अल बकरा आयत 99, काफरों के ऊपर डायरेक्ट जबरदस्त लानत, उनके अकीदे के ऊपर नहीं भेजी। जी जी, हाँ, क्या मैं आपकी बात मान रहा हूँ ना कि ऐसे ही है जैसा कि आप बता रहे हैं, कुरान के अंदर डाल दी गई है लानत, काफी है वो। अच्छा, तो तो क्या उनको फिर फैसला क्या हुआ? देखें ना, मुफ्ती साहब, उनको तबलीग भी तो करनी है ना, तो आप तबलीग कैसे करेंगे अगर आप पहले ही उनको लानत भेज देंगे इस तरह करके? तो वो कौन सुनेगा आपकी बात? वैसे आप लोगों के बारे में अल्लाह पाक ने सूरह अन-निसा आयत 46 के अंदर बता दिया है, हजरत अली वलाकिन हज़रत लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, कि जब अल्लाह काफर करता है, लानत करता है काफरों के ऊपर, तो इसके ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन बहुत थोड़े लोग होते हैं जो यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं मुफ्ती साहब, आपको कवाली की इस हिस्ट्री लानत पता है भेजने के ऊपर। कि किस तरीके से वो हिंदुओं को कैसे जो है रागिब किया गया था? नहीं नहीं, वो देख ले, अल्लाह ने सूरह निसा आयत 46 के अंदर आपके बारे में पहले ही खबरदार कर दी है, बता दी जी, है। ठीक ठीक, सही सही। हम्म। तो थोड़ा सा जो था वो अगर इनको नरमी से जो था उनसे बात कर लें तो क्या पता हिदायत क्या पा जाए। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक नरमी नहीं कर रहा, अल्लाह सख्ती नहीं कर नहीं, रहे हैं? मैं आपकी बात कर रहा हूँ मुफ्ती साहब। भाई मैं तो लानत की बात करो, अभी तो और कोई बात नहीं हो रही, और कोई मौजू नहीं, सिर्फ लानत, मिर्जे नहीं, कादियानी के ऊपर कह लानत। रहा हूं ना कि उनके सबके गंदे अकायद के ऊपर लानत। नहीं, अकायद नहीं, उनकी जात के ऊपर लानत, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत पे हमने अमल करना है, डायरेक्ट उनके ऊपर लानत डालनी है। जी जी, हाँ, वो तो फिर लड़ाई हो जाएगी, वो नाराज हो जाएंगे सारे। नहीं होने दे, होने दे, अल्लाह इसके अंदर खुश होता है। अच्छा, ये हाँ तो तबलीग का जो था वो कहा गया है कि उनको तबलीग जो होती है करनी है, लानत डालने से तो नहीं। हाँ हाँ, लानत पहले, अगली तबलीग बाद में, लानत पहले, तबलीग बाद में। उनको बेचारे भटके हुए हैं, वो देखें उनके सारी चीजें जो होती है वो हमारी तरह ही हैं, वो नहीं, खत्म भटके तो हुए हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई अब हम उनके कुफर को जो है ना तस्लीम कर ले और उनके ऊपर लानत ना करें। हम कह रहे हैं वो गलत गलत जो होते हैं वो हैं, लेकिन नहीं, ये है गलत कि अलग चीज होती है, कुफर अलग चीज होता है। जी जी, वो कुफर कर रहे हैं, कुफर कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ये तो डाल दे उनको फिर लानत, अगर आप तस्लीम करते हैं कि कादियानी कुफर कर रही हैं। खिबला उनसे थोड़ी सी जो थी वो, उनको आपका मकसद तो उनको हिदायत पर लाना है ना, कि नहीं? या उनको नहीं, अभी नहीं है, अभी ये मकसद, अभी तो सिर्फ लानत डालना मकसद है। तो वो तो फिर नाराज हो जाएंगे, फिर वो बात कैसे होने सुनेंगे? दे, कौन सा रिश्तेदारी है हमारी उनके साथ, नहीं, हमारी तो नहीं और है, लेकिन भले रिश्तेदारी होती भी तो फिर भी हमने लानत डालनी थी। हाँ अच्छा, ठीक। हाँ, हमारा बाप भी अगर ऐसा होता तो हमने उसके ऊपर भी लानत डालनी थी। तो फिर अगर मैं वो डालूंगा तो कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा और फिर इस तरह कहेंगे कि ये तो हमारा दुश्मन है, फिर ये जो था वो हाँ, क्या तो कोई होगा? बात नहीं, फिर क्या हुआ आपको, आपने क्या अल्लाह के अहकाम के ऊपर अमल नहीं करना चाहते आप? नहीं नहीं, लोगों ये से बात डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते आप कि रिकॉर्डिंग को कर लेगा? नहीं नहीं मुफ्ती साहब, वो हेट क्राइम हो जाता है ना यहाँ, आप तो वहाँ पाकिस्तान में कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ, बड़े बड़े हेट क्राइम है, जी, पूरी यहाँ दुनिया के अंदर हेट क्राइम ही हो रहे हैं सारे। किसी के खिलाफ बात करो तो वो हेट क्राइम है, वो यही कहते हैं कोई इसके बात अंदर। नहीं, फिर क्या हुआ? तो जब वो यहाँ हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं तो हम नहीं उनके खिलाफ बात कर सकते? जी जी, सारी कादियानियत हेट क्राइम कर रही है। शाह जी ये बोलना चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में हैं, हम बाहर बैठे हैं, भाई मैं भी बाहर बैठा हूँ। बात जी कहने जी, का मतलब ये है कि आप उनको बोलते हैं कि वो हदायत पे आ जाएंगे। एक जो मिनट जी, मेरा सुपर भाई, एक मिनट रुक जाए जरा, एक मिनट रुक जाए जी, सुल्तान साहब।
जी मुफ्ती साहब, वो हेट क्राइम में आता है ना, किसी को उस तरह बोलना जो होता है वो जी जी, वो भी आपके मुल्क के अंदर ही बैठ के हमारे साथ हेट क्राइम कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, आपके मुल्क में बैठे हैं। हाँ, जी जी गलत बात अगर है, गलत बात कानून है। उनको कुछ नहीं कह रहा तो आपको भी कुछ नहीं कहेगा। जी जी सही सही। जी, डाल दे लानत। लानत क्या लानत? डाल दी ना, और कैसे मुफ्ती किस साहब कहाँ को डाली? मुझे ऐ ते हवामा च कटोरे सुट्टी है, तुसा डाली ते कोनी है। कटोरे में ला के डाले उनके ऊपर। नहीं, ऐ नहीं, ते जो भी हवामा च लोग हैं, सुट्टी जे एवें क्या मुफ्ती अखा साहब, बंद जो करके, भी लोग हैं जिनका जिदे अकायद उत्ते मर्जी पै कादियानियों जाए वाले, जाके। जो भी लोग हैं जिनके अकायद कादियानियों वाले हैं, उन सब पे ਉਹ लानत। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, नहीं ਕਿਉਂਕਿ नहीं, ਤੁਸੀਂ मैंने ਐਵੇਂ ਹੀ डाल ਅੱਖਾਂ दी ਬੰਦ ना, ਕਰਕੇ मैंने ਸੁੱਟੀ ਹੈ कहा कि ਲਾनਤ। जो जिनके भी अकायद हैं उन सब पे लानत है ना, कादियानी जितने ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ठीक है, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਲਾਨਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਮੰਡਲਾਂਦੀ ਹੋਏ। नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हम इनको इस तरीके से बदजन कर देंगे तो फिर कोई बात कैसे ਉਹ सुनेगा? ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਜ਼ਨ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹੈ। नहीं, वो अब तो उनकी जो थी वो ये भी है ना कि सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, तो वो पैदा इस तरह हुए होते हैं बेचारे, तो अब उनका इसमें भी कसूर नहीं है ना, उनको क्या पता। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੋੜਾ ਮਾਰੋ। वो देखें, उसको आपने अब्दुल कादिर को मुसलमान किया था ना आपने। नहीं, वो बाद में बात करते हैं, अभी लानत के ऊपर रहे हैं बस। जी जी, तो डाल दी ना, हाँ। कितनी मर्तबा डालेंगे अब उनकी? क्या डाली है? मुझे मेरे सामने तो नहीं डाली आपने। कि जो भी होते हैं वो कादियानिया कायद जिनके भी, उन सब पे लानत। क्या है? जिनके भी कादियानिया कायद है उन सब पे लानत। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। कादियानियों के ऊपर डायरेक्ट और मिर्जे का, खास करके मिर्जे कादियानी के ऊपर जब आप डालेंगे ना, वो सब कादियानियत के ऊपर पड़ जाएगी। यार वो फिर उनकी होली पर्सनैलिटी की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी ना मुफ्ती साहब, फिर वो हमारी वो यार, ये हमें इस्लाम दर्श देता ही नहीं है। इस्लाम ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए हमारे लिए हमारा दीन। यार मुफ्ती साहब, ये फिर यहाँ पे जो है ना, वो गोरे भी यही काम करते हैं, फिर हमारा दिल दुखता है कि यार वो क्यों, तो इसलिए हाँ, करने दें, हर एक कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है ना ये काम, तो आपको करते हुए क्या होता है? क्या तकलीफ है आपको? दलाइल के साथ उनसे बात आप करते रहते हैं ना, अच्छी बात है। हाँ, दलाइल के साथ तो कर रहे हैं ना, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन लानत जरूरी है। लानत जब तक नहीं होगी आगे गुफ्तगू नहीं बढ़ती ना। जी सही सही सही। पहले लानत डालनी पड़ेगी। जी जी, चलो उनके लिए दुआ कर देते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। नहीं नहीं, वो दुआ भी करेंगे लानत डालने के बाद। यार लानत डाल देंगे तो फिर जो है वो तो फिर सारे नाराज हो जाएंगे। होने दें नाराज, मैं कह तो रहा हूँ। आप क्या, आपने कोई पैसा पूसा तो नहीं पकड़ा, या किसी कादियानी लड़की पर कोई आशिक हो गए हो आप, या कोई आपको कोई मसला लगता है? मुझे कोई है मुफ्ती साहब, वो ये है ना कि यहाँ नहीं पे है? बहुत बड़ी आपकी जोजा कादियानी तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ना वो इनकी मिर्जे बहुत पे लानत डालती है कि नहीं? सारे डालते ही हैं, लेकिन जो था वो इस नहीं, तरह public आपकी को- जोजा का मिर्जे कादियानी पे लानत डालने वाली है कि नहीं? जब देखें सारे जो होते हैं वो किसी कोई भी उनको सारे नहीं क्या, समझता। आपकी जोजा, आपके बच्चे मिर्जे गुलाम कादियानी पे लानत डालने वाले हैं कि नहीं? हैं कौन, उनको क्या पता कि कौन है ये। सही हो गया, मतलब वो भी आपकी तरह कहीं है, ठीक हो गया। तो यही प्रॉब्लम था ना असल में, कि आपकी असल में रिश्तेदारियां हैं, आपने कोई लेन देन है, आपको कोई मतलब कोई पैसे पूसे मिलते होंगे, तो इस वजह से आपको मसाइल है कि भाई वो मेरी मंथली बंद हो जानी है। अहले सुन्ना वल जमात है ना हम तो, लेकिन तो हमारा हम्म। तरीका यही है कि हमने इनको राय रस्त पे जो था वो अगर लाना है तो इनको अब ये देखिए जरा सुनिए, ये एक एन भट्टी साहब हैं कादियानी, वो कह रहे हैं मुफ्ती तेरे पर लानत। बुरी बात है ये तो बड़ी। ठीक है, इसके ऊपर भी अब ये मैं- देखिए, ये एक मिनट सुने ना, जी। एक कादियानी हमारे ऊपर लानत डाल, ये क्या हेट स्पीच नहीं है? उसने आप पे बराबर- ये हेट क्राइम नहीं है? बुरी बात है ना, नहीं तो करना बात चाहिए। सुने, जब ये हमारे ऊपर डाल सकते हैं तो हम इनके ऊपर क्यों नहीं डाल सकते? बताए ना, इसका सुल्तान साहब क्या जवाब है आपके पास? जी मुबशिर भाई, उन पे जो था वो डाल सकती है ना इंडिविजुअल, जिसने दिया भट्टी साहब के ऊपर लानत, जो जिस भट्टी ने नहीं नहीं, ये आप देखिए ना, भट्टी साहब के ऊपर आप डाल रहे हैं ना, इसी तरीके से मिर्जे कादियानी पे डाल दें।
वो तो फौत हो चुके हैं। अब जो था अगर मैं भाई डाल जरूर ये कौन सा तरीका है, जो फोत हो जाए तो उसके ऊपर लानत नहीं डालनी चाहिए? मरे हुए बंदे पे क्या जो था वो मुफ्ती साहब, ये तो इस्लामी तरीका ये नहीं है ना। किसने कह दिया कि मरे हुए पे लानत नहीं डालनी चाहिए? तो हम तो आप देखें कि हमने कभी जो था वो अबू जहल पे, अबू लहब पे जो थी नहीं डाली, वो अबू जाल अबू लहब भी मर गया है, उनके ऊपर भी डालेंगे लानत हम। ठीक 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 ठीक। फिरौन भी, नमरूद भी, ये भी मर खप गए, उनके ऊपर भी लानत डालते हैं। यजीद भी मर गया, उसके ऊपर भी लानत डालते हैं हम। ठीक ठीक ठीक, सही है तो आप भी डाल दे फिर मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर लानत। भाई। वो उनकी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है मुफ्ती साहब, लड़ाई हो जाएगी ना। किनकी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है? उनकी ये जो कादियानी लोग हैं वो फिर वो हमारी जो थी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज के तो बारे में अभी जब मैंने यजीद के ऊपर लानत डाल दी है, तो आज के दौर के अंदर बहुत से लोगों की यजीद रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, तो फिर क्या लानत डालनी छोड़ दें? अबू जाल अबू लाब ये हिंदुस्तान के आर्या धर्म की पर्सनैलिटी है, वो बड़ा था इनका, तो क्या फिर लानत डालनी छोड़ दें? नहीं नहीं ये हिंदू नाराज ना हो जाए हैं? अरे वो फिर लड़ाइयाँ हैं? हो जाएंगी जो थी, और क्या होगा? क्या हो जाएगा? लड़ाइयाँ हो जाएंगी, फसाद हो जाएगा। कभी लड़ाई होते देखी है आपने लानत डालने की वजह से? नहीं ना मुफ्ती साहब, देखें मैं आपको तारों ना कभी कभी आपने देखा हो कि लानत डालने की वजह से ये लड़ाई हुई है जी? हो जाएगी अगर आप जो था वो आपके साथ में हिंदू कब हो जाएगी? अभी तक तो हुई नहीं, तो अब हो जानी है कि सिर्फ आपने लानत डाली तो लड़ाई हो जानी है जी? आप तो रहते सारे वहाँ पाकिस्तान में, आपको क्या पता कि यहाँ मल्टी कल्चरल सोसाइटी है ना। आपको कैसे पता मैं पाकिस्तान में हूँ? हो सकता है मैं आपके करीब ही कहीं आपकी अगली गली में रहता हूँ। आप गुजरांवाला से, मुझे पता है आप कहाँ रहते हैं। नहीं वो ठीक है, मैं हूँ गुजरांवाले का, लेकिन अभी आप कैसे कह सकते हैं मैं गुजरांवाला में हूँ? मैं आपके पास ही हूँ। मैं फिर बताऊंगा, तो फिर मुझे सारा पता है आपके बारे में कि आप कहाँ रहते हाँ हैं। क्या पता है? लानत नहीं यानी आपने डालनी? वो आपके दोस्त ने वो जो था ना वो अब्दुल कादिर, लानत नहीं आपने डालनी? वो डाल दिया ना। अब कितनी मरतबा डालेंगे यार? क्या डाल दी है? इनके ऊपर जिनके भी वो कादियानी अकायद हैं जो अच्छा अब बात क्लियर हो गई, तो अब आप ऐसा करें, कोई मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ये समझते हैं आपके मिर्ज़ा कादियानी के कुफर हैं? हाँ हैं बिल्कुल है। हाँ वो कुफर कोई थोड़े से दो चार हमें बताएं मिर्ज़ा कादियानी। कुफर उनका जो था वो यही है कि अपने आप को जो था मसीह मऊद और जो था वो नाउज़ुबिल्लाह जो था वो नबी जो था वो समझना, और जो मसीह मऊद, चले एक एक करके बात कर लेते हैं ना। क्या मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैं मसीह मऊद हूँ? जी कहा है ना उन्होंने। मसीह मऊद क्या होता है? ये उनकी कोई टर्मिनोलॉजी उन्होंने निकाली हुई है, मैंने भी पूछा, वो कहते हैं कि नहीं आप कुफर बता रहे हैं मुझे, याद रखिएगा। जी जी आपने कहा कि उसने मसीह मऊद का है, ये उसका कुफर है, तो इसको अब आपने साबित भी करना है उसका कुफर जी। जी तो जो भी बताएं। होता है वो इस तरह, मतलब कि एक तरह से अल्लाह ताला के ऊपर बुहतान लगा दिया ना आपने, कि उन्होंने आपको क्या मबूस बुहतान लगा दिया? कि उन्होंने जो था वो आपको मबूस किया या आपको मसीह नहीं मसीह मऊद जो होता क्या है? मसीह मऊद किसको कहते हैं? क्या पता, ये वही जो आने हैं इमाम मेहदी। इमाम मेहदी मसीह मऊद होता है? मेरे ख्याल में तो वही होते हैं। ये आपको या तो आपको पता है सब कुछ और आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, या आपको पता ही कख नहीं है। मुझे सारी चीजें पता है। दो में से एक बात तो जरूर है। जी जी तो वो यही है ये तो अकीदा है ही नहीं। जी अच्छा ये नहीं है, तो मुझे थोड़ी पता कि मैं कादियानी थोड़ी हूँ कि मुझे पता ये हो। ड्रामेबाजी, या तो आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं, जानबूझ के छुपा रहे हैं? मुझे क्या पता मसीह मऊद कौन है यार। यही तो फिर आपने क्यों कहा कि ये उसका कुफर है? मैं तो उसके कुफर के बारे में पूछ रहा हूँ, कौन कौन से उसने कुफर किए हैं? तो आपने पहली बात ही मसीह मऊद की है जी, कि वो अपने आप को जो था ईसा कह देना, अपने आप को जो था वो ये कह देना। मसीह मऊद किसको कहते हैं वो बताएं आप? इमाम मेहदी को तो नहीं कहते मसीह मऊद यार था मुफ्ती साहब जी। मुझे दोनों में से कोई एक होगा, या इमाम मेहदी होंगे या ईसा होंगे। नहीं या का क्या है? कादियानी अकीदा मुझे आप बताइए, मसीह मऊद से क्या मुराद होता है? मुझे क्या पता, ये जो था जिनका हम वेट कर रहे हैं ना मुसलमान, कि हमारा ये अकीदा है कि क़यामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे, हज़रत ईसा की सेकंड का। नहीं कौन वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है? ये जो था वो सारे मुसलमान जो है। नहीं हम तो नहीं इंतजार कर रहे।
तो नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन किताबों में तो हम जो तो था कब इंतजार कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक 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 चले। हाँ तो वो ये कहते हैं कि शायद वो कहते हैं कि यार वो वही है अपने जो थी, जो उनकी वो पर्सनालिटी है, जो वो पंजाब से कोई निकले थे, इनके जो थे वो जो इनके जो लीडर थे। कुफर बताएं यार, उसका कुफर कोई बताएं, अगर आपको कुछ पता है तो बता दें, नहीं तो आप कह दें नहीं मुझे पता। मुझे नहीं पता, नहीं पता। फिर क्यों गप्पे मार रहे हैं, ऐसे टाइम से बर्बाद कर रहे हैं आप। मैंने कब कहा कि मुझे पता है? दंदियां निकाले जाएं, दंदियां निकाले जाएं, बात कोई है को नहीं बेच। चल भाई ज़ियार सुन, मैं क्लियर कर लिया बंदा, अगे गल कर लो इहदे नाल। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। ये जो साहब बैठे हुए हैं अहमद साहब, अहमद सुल्तान, आप यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे अहमद साहब ये बताइए कि मुफ्ती साहब के सामने आपने अब ये बात क्लियर करनी है। आप वहाँ नादरी की ब्रॉड पे जाके उनको कह रहे थे जी मुझे मुफ्ती मुबशर साहब ने भेजा है, जो कि सरकारी मुसलमान है, वो आपसे डिबेट करना चाहते हैं हयात ईसा पर। क्या मुफ्ती साहब बैठे हैं? मुफ्ती साहब आपने इनको भेजा था कि मुझे मेरे साथ जाके उनकी डिबेट के लिए कोई टाइम लो? नहीं जी नहीं। तो अहमद साहब आपको किसने हक दिया जाके वहाँ जाके आप नुमाइंदगी कर रहे हैं मुफ्ती साहब की, जबकि मुफ्ती साहब तो आपके सामने बैठे हैं? तो आप कैसे वहाँ जाके कहा ही नहीं था मुझे, तो आमिर नजीर ने कहा था, मैंने आमिर नजीर का नाम आमिर नजीर साहब ने नहीं, आपने मुफ्ती मुबशर साहब का नाम लिया था, मैं सुन रहा था वो। आपने मुफ्ती मुबशर साहब सरकारी मुसलमान साथ लगाकर ये कहा था कि वो सरकारी मुसलमान जो हैं, मुफ्ती मुबशर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं बात करते? उन्होंने कहा जी मैं बात करूंगा, मुसलमात खसम तय कर लें। और उन्होंने आपको बड़ी देर लगा के मुसलमात खसम समझाया, तो होता क्या याद है आपको? मुझे याद है अच्छी तरीके से, लेकिन मैंने तो भाई जब मुफ्ती साहब ने आपको ये कहा ही नहीं या किसी साहब ने कहा ही नहीं, तो फिर आप कैसे किसी का नाम वहां जाके ले सकते हैं? वहां 20-25 लोग बैठे सुन रहे थे, तो वो तो ये समझेंगे ना कि मुफ्ती साहब अपने बंदे भेज रहे हैं जिसको खुद को बात करना नहीं आती, और वो आ गया यहाँ पे आके मुनाजरे के असूल तय करने के लिए। मुफ्ती साहब का आपको किसने हक दिया किसी का नाम इस्तेमाल करे वहां जाके? ओ भाई साहब थोड़ा जरा दिमाग से ठंडा करें ना, मैंने तो लिया ही नहीं था नाम, तो उन्होंने लिया था, मैं तो किसी और पार्टी की तरफ से किया। उन्होंने नाम नहीं लिया, आपने नाम लिया। उन्होंने पूछा किसने भेजा, आपने कहा मुफ्ती मुबशर ने कादरी ने भेजा है। ये अल्फाज थे आपके साथ, सरकारी मुसलमान का वर्ड यूज किया आपने, याद है आपके? नहीं नहीं, आपको गलती लगी है। मुझे गलती कहाँ लगी है यार? कोई इंसानियत भी होती है। बेशक मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन वल्ला आपको कम से कम इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए ना कि आप सच जो है ना वो बोले हैं कि मैंने हाँ बात की थी। आप हिम्मत है तो बोले आप। उनसे बात मुझे किसी और ने भेजा था और उनका मैं नाम लिया था, उन्होंने कहा था कि अपने मुफ्ती को यहाँ पे ले आओ, तो मैंने कहा किसको कहते हैं? मुफ्ती मुबशर को। बस ये जो थी वो बात। नहीं, आपने ये कहा था कि मुझे मुफ्ती मुबशर ने भेजा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, नहीं कहा था। ये आवाज ऊंची करोगे तो क्या इसका मतलब है? झूठ के कोई सरपाव नहीं होते, झूठ के कोई सरपाव नहीं होते। सुल्तान साहब कोई खुदा का खौफ कर ले। आप जिस खुदा को भी मानते हैं, पता नहीं आप किसी खुदा के कायल हैं कि नहीं। मौजूदा आप क्या हैं? एथीस्ट हैं, दैरी हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, अल्लाह ही जानता है क्या है। लेकिन कम अज कम अगर किसी खुदा को मानते हैं तो उसका खौफ कर लें। अगर आप एथीस्ट भी हैं तो फिर भी आप साइंस को अपना खुदा मानते हैं, तो कोई साइंस का ही खौफ कर लें, अपने खुदा का खौफ कर लें। हैं? मैं आपके सामने मौजूद, करें डिबेट, लाएं किसी मौजू पे करें, किसी एक तरफ आए तो सही ना। आप तो आ ही नहीं रहे। फिर आपको उनसे डिबेट, मैं मौजूद हूं, आए करे बात करें। उनका वो तलब मेरे पीछे पर्दा, मेरी पुष्ट के पीछे बातें करने का कोई हक नहीं, कोई तुक नहीं बनता। मैं जब सोशल मीडिया के ऊपर सरेआम सबके सामने मौजूद हूं, बीच में आपके, कभी आपके साथ बदतमीजी की हो, कोई गाली गलोच की हो, मुझे बता दें कि भाई तुम बदतमीजी करते हो, कोई गालियां निकालते हो, बताएं। अब फिर आप उनके रूम में कर लें उनसे डिबेट। तलत महमूद किन के रूम में? ताहिर अमजद किन के रूम में? वो उनके वो तो मुझे घुसने ही नहीं देते आपके भाई लोग। तो फिर आप लोग उनको यहाँ नहीं घुसने देते, फिर अब क्या हो सकता है? मैंने कब रोका है? आप क्यों झूठ बोलते हैं यार? यही मैंने आपको कहा कि आपको कोई खौफ नहीं है किसी का झूठ बोलते हुए। मैंने कभी रोका हो? कोई ये सबूत है आपके पास? अब देखें, मैंने अगर नाम ले लिया तलत महमूद साहब का, ताहिर अंजुम साहब का, तो वो बोलेंगे यार तुमने हमारा नाम क्यों जो था वो ले लिया। मैंने सिर्फ आइडिया दिया कि और नहीं, मैंने कब रोका? हम क्यों झूठ बोल रहे हैं मेरे ऊपर कि तुम रोकते हो? मैंने कब रोका है? हम तो तरस गए हैं कि कादियानियों हमारे साथ बात करो। उन्होंने तो हमें ब्लॉक कर रहे हैं। सही तो वो आप लानत भेजते होंगे ना, इसलिए ब्लॉक कर दिया होगा। लानत क्या, हम तो वो खंजीर कहते हैं, हम सिर्फ लानत ही नहीं भेजते।
अगर आप उनको खंजीर बोल दोगे, उन पर लानत भेज दोगे, तो फिर बात कैसे होगी नहीं, यार? वो असल में हम मिर्जा गुलाम कादियानी की सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे होते हैं ना इस टाइम, हाँ तो मैं जब हम खंजीर कहते हैं। क्योंकि मिर्जा कादियानी जो है ना, उसने ये कायदा कुलिया बनाया था कि जो उसको मानता नहीं था तो वो उसको कहता था तुम खंजीर हो, तेरी माँ कुत्तियों से बढ़ गई है, गालियां निकालता था। वो ये कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम अगर उस रूम में जाएंगे तो वहाँ ब्लास्फेमी होती है, हमें गुनाह मिलेगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। कौन सी ब्लासफेमी, कौन सी ब्लासफेमी? ब्लास्फेमी वही जिसके ऊपर पाकिस्तान में सजाए मौत की सजा नहीं है वो। हाँ, तो ये मतलब अब मिर्जा कादियानी जो ब्लासफेमी करता था, तो इसके ऊपर मौत की सजा है। बताएं कौन सा कानून बनाए? वो ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब, कभी आपने देखा हो कि कादियानियों की इन ब्लासफेमी के ऊपर कभी कोई सजा किसी को मिली हो? पता नहीं, अब मुझे तो उसके बारे में क्या पता नहीं, हर बात में तो आप पता नहीं बीच में डाल देते हैं, पता नहीं तो फिर पता नहीं। बात कैसे होगी जब आप शुरली आप छोड़ के तो बाद में निकल जाते हैं आप। ठीक ठीक, सही सही। तो यही है कि वो देख लें कि वो आपने खुद बताया कि वो ब्लॉक कर दिया उन्होंने, तो वो अस्सलाम ब्लॉक कर वालेकुम दिया। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो यकल के नाखून ले लें आप, समझ आई कि नहीं? या मेरे साथ डिबेट करें, आमने सामने मौजूद है मैं, आप पैनल में मौजूद दूसरे दोस्त हैं, उनसे बात कर लें। मुफ्ती साहब ये बड़ा मोतमिन बंदा है। ये तकरीबन 9:30 बजे से पहले मुफ्ती जो से अब्दुल रहमान साहब मिस्टर एबियर के पास बैठे थे, वहाँ पे अच्छी भली इसकी हुई है, इसको अच्छा भला समझाया है, इसको दलाइल की रोशनी में खातमुन नबीन का सिर्फ लफा समझाया घंटे में, तो वहाँ से मुतमिन होके खुद उतर गया, उतारा भी नहीं गया था। अब ये यहाँ पे आके फजूल दिमाग खा रहा है, बात इसने करने की कोई नहीं है। वह में भी ऐसे कह रहा था, अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, सही फरमा, ऐसे ही है, ये है बिल्कुल सेम, तब भी ये लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहा था उधर। इसने यही काम करना है और इसका कोई काम नहीं है। तो अगर यार ज्यादा क्या करें, तलवार निकाल के उनका सर काट दें, क्या कर सकते हैं यार? ये भाई तो हमारा तो टिकटॉक काम ही है ना, यही है ना, हमारा काम क्या ही कर यही है। सकते हैं? और मतलब मैं हम सुन रहा हूँ आपकी बातें जो होता कह रहा हूँ कि हाँ मैं सही है, सही है। मेरी बात सुनो, ये जहाद के ऊपर बार बार टॉन्ट ना करो, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोबारा तलवार का लफ्ज इस्तेमाल ना करना, बड़ी इज्जत के साथ आपको बिठाया हुआ है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल ना करना। बहुत शुक्रिया आपका। ये जिनकी मैंने तस्वीर लगाई है ना, तो इंशाल्लाह ये भी जंगे यमामा पर एक दिन अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह कादियान को सीधा करेंगे। ये भी आपने जेल में देखा होगा क्या चल रहा है। आपके भाइयों पर ना अब पाबंदी लगी है मंडी बहावलदीन में, तो वहाँ पे ना उन्होंने पाबंदी लगाई है, तो नईम छठा साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया हुआ है इस जुर्म में। तो फिर आपके भाई भी, आपके भाई के जो से है ना सरपरस्त आला जो उधर के वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने उनको पकड़वा लिया है। तो अब तो ये गलत बात नहीं है कि हम नहीं बस इतना कहे भाई, तो आप गुस्ताखियाँ भी करते हैं, बेअदबियाँ भी करते हैं, ख़त्म नबूवत के मुनकर भी है, आपको काफर भी डिक्लेयर किया गया है, और आप मीनार भी नहीं बना सकते, फिर भी आप मीनार बनाकर मस्जिद में जाके हमारी मस्जिदों पर थोड़ा मारते हैं, मस्जिद को शहीद करते हैं। ये किस सूरत में हम करते हैं, किस वजह से करते हैं? हम तो कानून पे अमल करवाते, लेकिन उसके बरक्स उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये क्या वजह है? ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? आपको यहाँ पे कानून नजर नहीं आता? अब आपका माइक बंद नजर आ रहा है। यार वहाँ इंडिया में हिंदू भी यही करते हैं, वो भी मुसलमानों नहीं, की हिंदू मदद में जा रहे हैं। ओ हिंदू को छोड़ो, अब हम बुत परस्त बन जाए, हिंदू की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, आप कादियानों की बात करो। देखें, जब हिंदू की बात अकलियतों करेंगे पे तब वहां पे बात रहेगी। बात सुनिए, अकलियतों पर तशद्दुद करना कोई अच्छा काम नहीं है। ओहो ये नाउज बिल्ला, जैसे हजूर ने तो इतनी जंगें लड़ी है, वो तो माजल्ला वो तशद्दुद कर रहे थे। कौन से बकवास करते हो तुम्हें शर्म नहीं है ये बात करते? अल्लाह जिहाद को हुक्म देता है कुरान में, तुम फिर कहते हो कि भाई ये तशद्दुद है। ये कौन सी बात करते हो आप? तो आप क्यों नहीं गए फिर, जब वहाँ इतना अरसा होता रहा वो अफगानिस्तान के अंदर, आप गए थे लड़ने वहाँ काफिरों के? यार ये बात ना करो अफगानिस्तान में। अभी हमारे फिलिस्तीन में जा रहे हो आप? हमारे पठानों ने हम पे दौड़े लगवाई है। ये एमी धोखा दे रहा है, ये उधर जाके एमी आपका नाम इस्तेमाल मुझे करता है। मियां तैमूर साहब, ये एथीस्ट है, ये पूरी हरामजादगी कर रहा है, बार बार जिहाद पे टोंट कर रहा है, तुम्हारी नस्लें फाड़ के रख देंगे हम, ओ भाईजान, ये याद रखना। दफा हो जाए जहाज की दिमाग ना जहाज की बात, काम कर यार। एक मिनट शोध हरामी। जहाज की बात करता है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम आमर साहब। कैसे सारे भाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुने? मुफ्ती साहब ठीक है जनाब। ये कोई मुसलमान नहीं है, ये हर लाइफ पे जाके उनके हमें सामने जो मालूम है, जी जनाब करते हैं, वो जो बात बहुत करते अच्छे हैं, तरीके से जी मालूम है, जनाब, ये बहुत जो अच्छे है, तरीके। ये उन्होंने समझाया हुआ, इसको उन्होंने समझाया हुआ, भेजे हुआ ओके इधर। बोला आमिर खान भाई, जी जी मुफ्ती साहब, मुफ्ती मुबशर शाह साहब जो उनसे बैठे ना, ये पहले अल्फाज में पहचान लेते हैं कि ये कादियानी या मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले ही गुफ्तगू में पहचान लेते हैं, लेकिन उनसे उनकी कुत्तों वाली करके उन्हीं की मुंह से उन्हों पर लानत डलवा कर हम उनका चेहरा उतारते हैं। बस हमारा फिलहाल जब ये जो से 2 नंबर आते उनके साथ ऐसे ही काम चलना पड़ता है, फिर मनाजा नहीं करना तो फिर ऐसे ही करना है। जी मुफ्ती साहब ने एक्सपोज कर दिया उसको, मेरा दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि मैं इसको कई उसे देख रहा हूँ। और यूसी भी भाई ठीक कहते हैं, ये हर लाइफ पे जाता है और यही कहते हैं, वो जब बात करते हैं कहते हैं, जी जनाब सही फरमा रहे, आप सही कह रहे, जी जनाब, बस यही बातें करता रहता है, इधर आते वही बातें करते हैं, उधर भी वही करते हैं। ये वो था, वो नहीं होता जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के आते इधर और हमारे जी जी, वो सामने जो सलाउद्दीन अयूबी के दौर में हुआ था। ये वो वाले काम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे भी बड़ी खुशी हुई मुफ्ती साहब ने जो करवाया ना अभी, एक्सपोज कर देते। बड़े जबरदस्त तरीके से तकरीबन 7 से 8 बार लड़ना डलवा दी। और ये इन्होंने आमिर नजीर साहब की बात, इन्होंने ये इसको सारे सबाई हैं, ये हरामजादे हैं पूरे, ये सबाई हैं, बहुत बड़े सबाई हैं, साजिशें करने वाले हरामी। हाँ बिल्कुल जनाब, ये यहूदियों की नस्ल है। यहूदी हमेशा ही साजिश करते हैं, वो कभी साजिश के बगैर कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि ये अंदरूनी साजिश करते हैं, बैरूनी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पता है इनको उनके आगे मुसलमान खड़ा है, उनके आगे मुसलमान खड़ा है। मुसलमान के सामने कभी भी ज़ाहरी तौर पर जंग नहीं कर सकते ये। उन्होंने सद्दाम हुसैन को भी ऐसे ही शहीद करवाया था, अंदरूनी करके तो उनको शहीद करवा दिया। तो सब तो इंशाल्लाह अल्लाह मैं के तो हुक्म भाई के साथ। ये डरता है उनसे, लेकिन ये बेगैरत है, ये मुनाफिक है। इसकी बातों से मुफ्ती साहब ने साबित कर दिया। मैं पहले समझ रहा था पता नहीं उनके साथ रहता है, डरता है उनसे। बाकी डर का ईमान से कोई काम नहीं है, लेकिन अब इसके पास ईमान तो दूर की बात है, ये मुनाफिक है। हजूर ने पहले फरमाया था कि हजूर से किसी ने पूछा, खालिद बिन मौला अली ने पूछा कि मोमिन कभी बुज़दिल हो सकता? आपने फरमाया नहीं बुज़दिल, हाँ नहीं वो तो लहदा जी, बिल्कुल बुज़दिल हो सकता है, झूठा कभी नहीं हो सकता। मोमिन का काम ही नहीं है डर से। मोमिन जो है जिसके पास ईमान है वो डरता ही नहीं है। सरेआम गाली देते हैं, ये बोलता है बाहर बैठ के, बाहर की क्या बात है, वो है ही कज़ाब है। जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कज़ाब है, तो कज़ाब ही बोलेगा ना, नबूवत पे डाका मारने की कोशिश करता है वो। बिल्कुल भाई ऐसी है, वो लानती है, दज्जाल, एक नंबर का कुत्ता, खंजीर है। तो उसे खंजीर को खंजीर ना कहे और अपना नाउज़ुबिल्लाह भाई कहे। तनवीर से भी बदतर है वो तो। हम तो बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं उनको, फिर ये हमें नीचे उतार देते हैं, हम नीचे से भी उनको बोलते हैं। देखो हम उनको गालियां नहीं देते उनकी माँ बहनों को, लेकिन उनको भी गालियां देते हैं, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी सरेआम गालियां देते हैं। इसमें क्या है, इसमें जब अल्लाह लानत करता है तो हम भी करेंगे इन पे लानत। हम उसे खंजीर पता किस मामले में कहते? दुनियावी खंजीर के मामले में नहीं कहते, हम उसे जहन्नमी खंजीर कहते हैं। वो दुनियावी खंजीर को कैसे हम कहे? ये तो खंजीर की भी तौहीन है इसको खंजीर कहना। ये जहन्नमी कुत्ता और जहन्नमी खंजीर कहते हैं। वही तो बात है ना। ये है बस, ये ऐसे मैं इस लड़के की बातें सुन रहा था, मैंने तो पहले दफा देखा इसको, मैंने समझा पता नहीं उधर रहता है, डरता है, इसकी वो फटती है उनके सामने। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मुसलमान हो चाहे जो भी हो, जज्बा अमानी उसमें होता है। अभी पता चला ये तो है ही बगैरत है। और ये मुफ्ती साहब की बात करें मुनाज़रे की, आपको मैं अभी बताता हूँ। आप अभी ना सिर्फ अकाउंट चेंज करके सिर्फ मुफ्ती साहब की तस्वीर लगाएं और साथ मुफ्ती मुबशर हुसैन शाह साहब लिखे, उसी वक्त आपको जाके आप कॉल डालेंगे, आपको ब्लॉक करेंगे या मैसेज करेंगे, आपको साथ ही म्यूट कर देंगे। इतना खौफ, इतना डर डाला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस सैयदजादे को सलामत रखे, इनको मजीद इस्तकामत अता फरमाए। कसम से इन्होंने जो काम शुरू किया हुआ है। और एक बड़ी बात मैं बताऊं, मैंने ना अल्लामा आसिम अशफाक साहब से बात की थी कुछ ना, तो उनको मैंने कहा था ये इनको जानते? कहते हाँ हाँ बिल्कुल उनको मैं जानता हूँ, ख़ातिम नबूवत फोरम पे काम करता है। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा रियाज कादिर साहब के मुरीद? कहते जी जी मैं जानता हूँ यार, इतने
लोग उनको जानते हैं। और एक और भी थी, मैंने मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के नंबर पर कॉल थी, लेकिन सेक्रेटरी ने गालिबा उनकी उठाई थी, तो उनसे भी मैंने बातचीत की। तो मैंने कहा ऐसे कुछ लोग हैं, उनके खिलाफ बकवास करते हैं, सैयदजादे हैं, उनको आप जानते हैं? कहते कौन, नाम क्या है? मैंने कहा मुफ्ती मुबशिर हुसैन शाह साहब है। कहते जी जी बिल्कुल मैं उनको जानता हूँ। जिसको भी इनका नाम मैंने दिया ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जानता, उन्होंने यही बात की, जी मैं जानता हूँ। उनकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी, लेकिन उनको पता नहीं कैसे पता लग गया कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने कहा, कहते रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते ये तो खिलाफ, कहते ये खिलाफ है, ये क्यों कर रहे हैं? आपने किससे पूछ की? कि मैंने कहा मत जनाब मैं माजूद हुआ हूँ, मुझे मालूम नहीं था, मैं अभी डिलीट कर दिया। तो फिर मैंने डिलीट कर दी उसी वक्त। तो मैंने उनसे मैं बातचीत मुफ्ती की साहब को थी। अक्सर सुनता रहता हूँ। बात यह है कि वो उनका ये इल्जाम है कि मुफ्ती साहब जो है ये जिन उलमा रिस्पेक्ट नहीं कराम के करते। आपने रिजवी बादशाह नाम लिए हैं, तो उनको दोबारा मुलाकात हो तो आजिज का मोहब्बत बरा सलाम अर्ज करिए। जी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह। और मैंने शाह जी, डॉक्टर अशरफ जाराई साहब को भी कॉल की थी, लेकिन वो भी उनके सेक्रेटरी ने उठाई थी, लेकिन उन्होंने कहा वो बीमार है, उनसे नहीं करा सकते बात। मैंने कहा चले कोई मसला नहीं, मेरा सलाम पहुंचा देना। कहते ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह आपका सलाम लाजमी पहुंचाऊंगा। शाह जी को बोलने का यानी कि रिस्पेक्ट नहीं करते। हम भी आपसे बात करते हैं, आप हमारी तो रिस्पेक्ट करते हैं। हमको पता है जिस तरह का बंदा आप उससे वैसे ही बात करते हैं और इस काबिल ही हैं। और इनका रट्टा ये है कि यानी जिया के बारे में और आपके बारे में कि जाने ये जी हमको गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं। यही अभी मैं सुन रहा था, अभी यही उधर बोल रहे थे कि भाई इनको नहीं लेना आज के बाद रोड पे, इनको ब्लॉक करो। किनको? अभी जब ये जिया भाई आए ना उधर से, तो पीछे यही बातें कर रहे थे, 2-3 घंटे से डिबेट चल रही थी, तो बोल रहे थे आज के बाद जिया को भी ब्रॉड पे नहीं लेना है, इसको भी ब्लॉक कर दो पका पका। और जनाब इनके साथ पुश्ते भी नहीं ले सकती, क्योंकि उनके इल्म में उनको पता लग गया है कि ये आलिम दीन है। आलिम दीन जब बात करता है, जब वो आते हैं ना ये खातमुन नबीयीन पे, ये जो सा वहाँ पे दजल करते हैं, उस पे जब आते हैं तो आलिम दीन उसकी चंगी कुत्तों वाली करते हैं, क्योंकि उनको लुगत का मालूम ही नहीं होता। अरबी की लुगत क्या होती है, उर्दू की लुगत क्या होती है, इसमें क्या मतलब निकलते हैं, तो उनकी अच्छी वाली होती है। अब इसीलिए ये अच्छा किया कि इनसे इस बारे में बात नहीं करते। अब जैसे वो हमसे बात करते हैं, इनसे भी हमारा हक है। क्योंकि मैं एक बार गया था, ये एक था कादियानी, उसके पास मैं गया तो उसने मेरे साथ आला ज़त का एक शेर है, मैं उनसे अपने मदीने में जाके पढ़ा था, कोई तेरी बात क्यों पूछे रजा, तुझसे 1000 कुत्ते फिरते हैं। आपने जब ये शेर लिखा था, इस पे उसने किया, इसने वो वहाँ पे किया था ना, तो मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन जब मुफ्ती साहब को मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह इनको सलामत रखे, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया, मुफ्ती साहब इनके साथ उससे भी डबल करके बात करते हैं। यानी जितना उन्होंने मेरा चेहरा उठाया ना, तो मुफ्ती साहब इससे डबल इनका चेहरा उड़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बड़ा कसम से खुश हूँ इनसे। इन बगैरतों के साथ एटीट्यूड यही होना चाहिए, ये इस काबिल ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी बहुत ऊंची नीची बात करें, साथ ही नीचे धड़ाल करके फेंक देते, इसकी बड़ी फिर चास चढ़ती। और थले बह गाल पर ही साइड सुन, बकवास नहीं करनी, पहले गाल सुन फिर होते हैं। इसका मजा आता है, जैसे हमारे साथ करते हैं, और नीचे उतरोगे तुम्हें बात करने की तमीज ही नहीं है, तो ऐसे इनके साथ चलना पड़ता है फिर। यानी लातों के बूट बातों से नहीं मानते। जारी सी बात है। चले अभी मुफ्ती साहब से कोई अच्छी बातें सुनते हैं, मैं भी म्यूट लगाता हूँ। जी जी बिल्कुल, तुम्हारे मुफ्ती साहब। मैं थोड़ा सा काम में मसरूफ हूँ, आप हजरात पैनल में बैठे हैं, दोस्त आपस में गुफ्तगू करें, कोई कादियानी आता है तो फिर उससे निमट लेते हैं और कोई गुफ्तगू करते हैं। कादियानी असल में हथे ही नहीं चढ़ते, कादियानियों को ढूंढा करें, कादियानी मिलेंगे तो फिर ये एक्सपोज होंगे। असल में ये साहिब इल्म के साथ बात नहीं करते, बोले वाले लोगों को घेर के बैठे रहते हैं। भाई बात करो, अगर तुम्हारे अंदर कोई सच्चाई नाम की कोई चीज है तो बात करो, डरते क्यों हो, भागते क्यों हो, सामने आओ, मुकाबला करो। जब तुम्हारा मिर्जा खुद मुनाजरे करता रहा है, बकौल तुम्हारे, वैसे तो उसने जिंदगी के अंदर 5 मुनाजरे किए और 5 के अंदर ही उसको लितर पोला हुआ और बुरे तरीके से उसको शिकस्त हुई। उसके बेटे ने सीरतुल मादी के अंदर लिखा है कि मेरे बाप ने
5 मुनाजरे किए हैं। हाँ जी, तो उन 5 के अंदर उसको जिल्लत का सामना करना पड़ा है। तो तुम भी करो, क्यों नहीं करते, दौड़ते क्यों? बकौल तुम्हारे तो मिर्जा कादियानी जो है ना वो जीता है मुनाजरों को, तो चलो यही चीज मान लेते हैं, तो आओ करो फिर, मिर्जे की सुन्नत पर ही अमल करो। ये 5 मुनाजरों वाला हवाला सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल सफा 219 और 220 और कादियानियों की हदीस नंबर 240 है। खाकसार अर्ज करता है कि यूं तो हजरत साहब की सारी उम्र जिहाद की सफ़े अव्वल में ही गुजरी है, लेकिन बकायदा मुनाजरे आपने सिर्फ 5 किए हैं। नंबर 1 मास्टर मुरली दर आर्या के साथ, नंबर 2 मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी के साथ, नंबर 3 मौलवी मोहम्मद बशीर भोपाली के साथ, नंबर 4 मौलवी अब्दुल हकीम कला नूरी के साथ, नंबर 5 डिप्टी अब्दुल्ला आथम के साथ। 5 मुनाजरे मिर्जे ने किए और इन 5 के अंदर मिर्जे को मुंह की खानी पड़ी, जिल्लत और खुआरी हुई। करो मुनाजरा, बात करो, जो हो तुम आओ सामने, निकलो। बराडे लगा के बैठे हैं बोले बाले लोगों को ऐसे ही, बस हमारे जैसा चले जाए, उतारो उतारो नीचे, उतारो 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 नीचे, उतारो 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 उतारो। ये है वो कि दुश्मन की जो है ना रगे जां के ऊपर हमला किया है हमारे मुजाहिदीन खत्म नबूवत ने। हाँ, तुम्हारी हिक के ऊपर बैठ गए हैं जाके, दुश्मन के अवानों के अंदर बुनछाल पड़ गए। हमने तो दरवाजे खोले हुए हैं अपनों के लिए, गैरों के लिए, सब आओ भैया आओ, बात करो। और तुम दौड़ते हो दौड़ते हो, दौड़ो, कब तक दौड़ोगे? तुम्हारा हम जहन्नम के दरवाजे तक तुम्हारा पीछा करेंगे जब तक तुम्हें जहन्नम में रसीद नहीं कर देते। बात करें आप, मैं थोड़ा सा मसरूफ हूं यार। जी माशाल्लाह सुभान, बिल्कुल। ये इनको जहन्नम में जब तक फेंक ना दे, इनको इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं। इनकी अब नींदें हराम हो चुकी है। अब पहले तो ये वैसे ही मुंह मारते थे ना, वैसे तो मुंह मार नहीं सकते थे, पहले बड़ा मुंह आगे दाए बाएं मार लिया। जाहिरी तौर पे ये सोशल मीडिया के अलावा बड़ा मुंह मार लेते थे, लेकिन वो फैजाबाद के धरने ने इनको उल्टा पुल्टा के रख दिया है। वहां पे जब उल्टा पुल्टा दिया, फिर सोशल मीडिया पर है, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा था। जब मुफ्ती साहब ने 2 मंथ के लिए कदम रखा है, इनकी चीखें आसमान पर जा रही है। अब ये कह रहे यार उधर तुम बाबा खादम ने पढ़ के सानू उल्टा पुल्टा के रखते हैं, यार शाह जी ने तो सानू उल्टा पुल्टा के रख छड़िया, असा की करिए हुण? कित्ते दी वैसी ना ऐसे किधर न जाइए यार? ये मुसलमान भी साडी जान ही छड्डे, और मुसलमान ने नहीं ताड़ी जान छड़नी। असं तो तासुबे क़यामत तक ताड़े मगर रहना है इंशाल्लाह। भाईजान ये सबसे बड़ा ये अमान का तकाजा है। और उसके बाद हम जो आम मुसलमान हैं, हम चलो इनसे ये इल्म हमारे पास इतना नहीं होता, लेकिन जब से ये बातें सुनते हैं मुफ्ती साहब की और ये ज़िया भाई हैं, बहुत बातों का हमें भी पता चलता है। फिर इनको हम भी दलीलों से बात करने की कोशिश करते हैं। चलो हमारे पास इतना इल्म तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसलिए ये हम लोगों को घेर लेते हैं कि हमें उल्टी पुल्टी यानी कि अपने पास से दलीलें दे देते हैं, तो हम लोग जो है ज़रा इनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन इल्म वाला जी बिल्कुल। देखिए जनाब, हम इनसे इसलिए बात नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इल्म नहीं है किसी चीज़ का। जो उनसे उलमा होते हैं उनके पास इल्म है, वो ऐसे ही आलिम नहीं बनते। 8 साल लगाने पड़ते हैं, 8 साल कम नहीं होते, 8 साल लगाने होते हैं। तो उनको इतना इल्म होता है, जो वो बकते हैं ना, तो जो दलील देते हैं, हमें इनका पता नहीं था कि भाई इसने सही बोला है झूठ बोला है। आलिम हो तो उसको पता है कि भाई इसने झूठ बोला है, आलिम डट के बात करता है। अगर बाप का तो ला के दिखा ये दलील, तूने झूठ बोला, अगर तू ला दे तो मैं यहाँ पे मिर्जाई हो जाऊंगा, अगर तू ला दे तो। क्योंकि दलील पर हमेशा डटना सीखना चाहिए। और जिसके पास इल्म ना हो, जिसको शक ही हो, वो कैसे डटेगा, कैसे डट के बात करेगा? बात ये है ना
इल्म होना चाहिए, इल्म के बगैर कभी बंदा नहीं कर सकता। अब हम हमारा जैसे कोई बंदा जाए, जैसे जब मैं नया नया गया तो मुझे कैसे घुमाते थे ये, मैं गया कहता खब मैं मकान मोहम्मद नबा हदी में रजाली को के रसूलुल्लाह व खातमुन नबी, ये दलील लेके गया तो कहते खातमुन नबी का माना मुहर है, तो फलाना तो डिबकाना। वहाँ मौला अली ने हजूर को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को कहा कि तुम खातमुल वली हो और मैं खातमुन नबीय्यीन हूँ। इसका मतलब है कि मौला अली आखिरी वली है और आप तो आला हज़रत को भी वली मानते हो, फलाने को भी वली मानते हो, तो तुम आज़ा हज़ूर ने गलत बात की, नाउज़ बिल्लाह। तो उसने ये ऐसे कमाते रहे, फिर ऐसे जब आहिस्ता आहिस्ता आता रहा ये इनकी, ये मैं एक दिन बिल्कुल देख ऐसी रहा था बात ही है भाई। मैं जरा रोड पे हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ, साथ साथ काम पे हूँ। मैं जरा म्यूट लगाता हूँ या कस्टमर उठाने लगा हूँ, तो आप कोई बातें करें, मसला नहीं आवाज जनाब। आई करिए। साथ साथ में काम भी तो करना होता है ना, इनको पकड़ने के साथ साथ। जियारतुल सो तो नहीं गया? जियारतुल जी सर जी। जाग सर रहे जी हैं थोड़ी जन? काम कर रहे हैं। हाँ करो जी, करो 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 करो। हुक्म करो, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? नहीं मैं ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ठीक है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ठीक। ਜਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस इंज ही है, महाजां ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਕੋ ਚੁਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਗਫਲਤ नहीं। जी यही है ना, हमेशा दलील की बुनियाद पर बात होती है, दलील के बगैर बात नहीं होती। तो ये जब मैं यहाँ पे है ना, यकदम ही मैं ऊपर कर रहा था, यकदम ही मुझे नजर आया, आपने लगाया था मिर्जा और ये गुलाम कादिनी भाई। तो मैंने कहा यार बड़ी चीज़ ढूंढी है ये, तो मैं उसी वक्त मैंने फॉलो किया था, आहिस्ता आहिस्ता पता लगता गया। और जो सवाल होता था पहली बार जब आया था, आपने कहा था सवाल उनका जो हो ना वो लिखा करो, लिख कर फिर उसका जवाब तलब किया करो, फिर ऐसे बात होती है उसके जवाब साथ ही लिख लिया करो। ऐसे जब मैं किया तो मैं सवाल साथ लिख ही जाता, ऐसे मुझे मिल ही जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहुत ही लम्हा इजाफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह के करम से, और ये मुफ्ती साहब के सदक़े से बड़ा ही अल्हम्दुलिल्लाह करम हुआ है। पहले तो ये मोहर का नहीं पता था, आहिस्ता आहिस्ता सा फिर मोहर के जरिए पता लगा। ये मोहर, वो मोहर माना करते, मोहर का उससे पूछो मोहर का क्या माना है, उससे मोहर का माना पूछो, तो वहाँ पर उनकी दलील ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके रूहानी ख़ज़ाइन में ये इनका माना लिखा हुआ है, इनके मिर्ज़ा साहब ने इसका माना किया हुआ है, बाकी तो फिर इससे आगे बढ़ नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के ज़रिए बड़ा हमें इल्म हासिल हुआ है। फिर लोग कहते हैं कि इससे क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, क्या इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। बाकी किसी को कुछ फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ायदा मिला है। कल कोई आके बात करे ना हमारे साथ कि क्या ख़त्म नबूवत के पास तेरे पास क्या दलील है, अल्हम्दुलिल्लाह डट के बात करने जानते हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह हम। पहले ये पता था कि हजूर आखिरी नबी है, ये भी पता कि कुरान में अल्लाह ताला ने माँ काना मोहम्मद नबा हदीब में रजाली बोला कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन फरमाए, ये भी मालूम था। अना खातमुन नबी ला नबी वाद, ये भी मालूम था। लेकिन अब वाज़िया हो के मालूम है कि किस लफ्ज़ से क्या माना बनता है और कैसे मायने निकलते हैं, अल्लाह के फजल करम से। ये तो पहली बार जब मैं गया तो मुझे एक दोस्त ने कहा था ये मसरूर जो है ना, ये घुमाता बहुत है, ये बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, इनके 4-5 बंदे बैठे थे, वो फिर इकट्ठे बोल के आपको घुमा देंगे। किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जो इनका चेहरा चमाटा छोटा हो, उसके साथ करें, फिर ऐसा बढ़ते हैं, ऐसे फिर हो गया। और कभी भी इनके साथ ये आखिरी नबी होने पर और साथ हयात मसीह पे बात न करी, सिर्फ इनके मिर्ज़े पे बात करके इसको ये झूठा है सच्चा साबित करके दिखाओ, ये शराबी है कबाबी है साबित करके दिखाओ कि नहीं है। ये गालिबन मुझे एक बाली नाम का एक शख्स है लाई बैठ, तो उसने मुझे कहा था ये, बस ऐसे वाकफ़त होती रही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दी है। मोदी साहब के पास बैठ के थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई वालेकुम क्या सलाम। मैंने माइक म्यूट किया है, मैं काम कर रहा हूँ, आप बात करें। मैंने सिर्फ सलाम ही करना होता उस्ताद जी आपको। क्या मसरूफ है जनाब, मसरूफ है। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। यूसुफ भाई, यूसुफ भाई आप मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसरूफ हैं आप? मेरी आवाज़ है? थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक। मेरे पर बंदे थोड़े शॉर्ट हैं तो मैं स्टोर पे ही हूँ अभी। अच्छा अच्छा, नहीं कोई मसला नहीं। असल में आप जब भी आते हैं ना तो नीचे लाइनें लग जाती हैं क्या उसको कहते हैं, फरमाइशों की। हाँ जी। मैं सुना देता हूँ इसमें। बिल्कुल ठीक है, एक मिनट में, सिर्फ एक मिनट मुझे दे, मैं इंशाल्लाह पढ़ता हूँ। कोई बात नहीं। रसूल साहब ये मिर्जा काने ने ये पीर मेहर अली शाह साहब को भी अपना मुनाजरे का चैलेंज दिया था ना, फिर भाग गया था गालिब।